Assalamu alaikum, Muskan. Thank you so much for joining the session. Walaikum Assalam, Umair. Thank you so much for having me. It's my pleasure to have you on this session. So basically, Muskan, the main reason of having these sessions is to get as much knowledge from people and try to understand what sort of overall ideation behind their overall experience जब भी वो कोई चीज कर रहे होते हैं. And one of the main reason is connected with people like you, like the new youth, the Gen Zs who are still working in the universities and also wanted to try out different things ताकि जब वो graduate हों तो उनके बाद उनको मेहनत ना करनी पड़े. They are still at that point. Because I personally believe if we as a generation, if we as a nation wants to learn, it's not only about learning from the people who are elder than me. I personally believe we can also learn from people like you who are also still studying and also trying to work it out in a different way. So before we start the session, there are a lot of pointers that I have in mind that I wanted to discuss. Wanted to know, okay, as a millennial or as a Gen Z, kya usme differences, and we'll be discussing all these things. But just for the audience, if you can introduce yourself, how's everything, how's life, kya chal raha hai aajkal, and then we'll start the session. Okay, perfect. So, my name is Muskan. I am 23 years old currently, and I am doing my bachelor's in media sciences from Ziauddin University. लोग Ziauddin University सुनते हैं तो उनको लगता है डॉक्टर बन रही हूँ डेंटिस्ट बन रही हूँ बट आई chose a different career path. I went for media sciences. And apart from that, I am currently part of an international organization. It's called ISEC. It's one of the Hmm. world's largest youth-run organization. It's in 124 plus countries. Like ISEC in Pakistan है, तो फिर ISEC in India है, ISEC in USA, ISEC in UAE है. इस तरह से different ISEC के societies हैं in different countries, right? Apart from that, big इन दो बड़ी चीज़ों के अलावा, I am a freelance content creator and social media marketer. So when I got into media science, that is when I started getting into the field, getting into the industry. I've been earning since my second semester, and Hmm. alhamdulillah, now that I am in my sixth semester, I am financially independent as well. So yeah, that is pretty much about me. Fair enough. So, thank you so much for giving me a brief introduction about yourself. So, let's start from the very beginning and try to understand what sort of ideation you have in mind when you're doing certain things in your life. Because, to be very honest, a lot of people come to me and they were like, Gen Zs are not that good. Gen Zs are different from millennials. They do these things like that. But at the same time, I personally believe that rather than accepting that faith, why not I ask directly to a Gen Z and try to understand what's their sort of ideation when they are doing such things. So let's go back to the point when you decided to do media studies. Yes, I don't see it in a different way because nowadays universities are also coming up with a strategy of अगर ठीक है अगर एक यूनिवर्सिटी कुछ एजुकेशन सिस्टम से पैसा कमा रही है तो वीसी के वो ट्रेंड चलना शुरू हो जाता है. ठीक है ऑल टुगेदर कि ज़ियाउद्दीन अगर मैं आज से 2 3 साल 4 साल पहले की बात करूं तो किसी ने नहीं सोचा था कि ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी जो हॉस्पिटल है जो ये सारी चीज़ें पढ़ाता है वो यूनिवर्सिटी खोलेगा और यूनिवर्सिटी के अंदर मीडिया स्टडीज पढ़ाई जाएंगी. ठीक है. I know a lot of about Ziauddin because a lot of my friends were in Ziauddin doing media studies, and also the overall faculty when Ziauddin University started, they basically moved the overall faculty from Ikra University to Ziauddin University because at that time Ikra University was supposed to be one of the biggest name in the media studies. Nevertheless, अच्छा था बुरा था जैसा भी था, but yes, I am a student of Ikra University, but मेरे टाइम में चीज़ें बहुत अलग थी. अब आई थिंक पर्सनली चीज़ें बहुत अलग होंगी. सो what time you decide to do media studies and why? Because when I see people doing BBA or doing other graduations, they have the mind कि okay fine, I wanted to run my business, I wanted to explore that side of it. ठीक है. Why as a Gen Z do you think media studies is a good decision? और दूसरी चीज ये, is it your decision or it's something that your parents or that your sister or brother or cousin or anyone suggests you कि okay fine यार ये चीज हो रही है कर लो. बिकॉज बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कि आप ग्रेजुएशन किस फील्ड में कर रहे हैं. यस, इट्स अ वेरी बिगर डिबेट कि ओके फाइन जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज में ग्रेजुएशन करें तो आप उसी चीज में ही परसू करें चीजों को. बट ग्रेजुएशन विल गिव यू अ वेरी बिग पर्क. व्हाट आई पर्सनली बिलीव के it's not about what degree that you are doing, it's also about from where that you are doing it.
मेंटालिटी का फ़र्क होता है। सो हाउ वाज़ योर स्टोरी? व्हाई डिड यू चूज़ मीडिया स्टडीज़? डू यू थिंक इट्स अ राइट डिसीजन? डू यू थिंक कुछ और करना चाहिए था इसकी जगह? ओके परफेक्ट। सो मेरे मीडिया साइंस चूज़ करने के पीछे एक बहुत ही आई थिंक मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरी है फॉर द यूथ टुडे। सो मीडिया साइंस वाज नेवर एवर माय फर्स्ट चॉइस। सो इफ आई गो हुँ, बैक टू स्कूलिंग, आई वाज दैट पर्सन, दैट ए ग्रेड स्टूडेंट जिसको बचपन से शौक था डेंटिस्ट बनना है या डॉक्टर बनना है। आई वाज दैट हुँ, स्टूडेंट कि बस मुझे मेडिकल साइड पर जाना है। सो मैंने अपने मैट्रिकुलेशन की आर्मी पब्लिक स्कूल से ग्रेड 10 तक, ठीक है, एंड उसमें मेरा कोर सब्जेक्ट बायोलॉजी थे। देन आई वेंट एंड आई गॉट लाइक अमेजिंग ग्रेड 80s 90s में परसेंटेज, हुँ, ए प्लस ग्रेड। So I was a star kid because medical में that is required, एक परसेंटेज से भी आप रह जाते हो in universities. Then fast forward, I joined intermediate. उधर भी obviously I chose pre-medical as my subject because मुझे तो डॉक्टर और डेंटिस्ट के अलावा तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, कुछ सिखाया ही नहीं था। एंड इट वाज नॉट समथिंग जो मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे इन्फोर्स किया था कि बस हुँ। डॉक्टर बनना है या ये। बट एक ना मतलब जब आप बड़े हो रहे होते हो ना, यू डू सी योर पेरेंट्स अप्रिशिएटिंग दी सर्टेन फील्ड, द डॉक्टर, द डेंटिस्ट, द पायलट This एंड is this is इंजीनियर। this is this हाँ, is still this is still the case if it comes to Gen Zs। हाँ, मतलब मुझे एग्जैक्टली। समझ में आता था कि हमारे टाइम में समझ में आता था, और हमारा टाइम इज इनके मिलीनियल्स, जब हम छोटे थे, जब हम डिग्री में जा हाँ, रहे थे, तब हमने सोचा था कि हाँ ठीक है, हमारे माँ बाप को बड़ा शौक था कि या तो इंजीनियर बन जाए तो डॉक्टर बन जाए। हाँ, फिर एग्जैक्टली। उनको बहुत जल्दी अंदाजा हो गया कि ना वो इंजीनियरिंग देख सकते हैं, ना वो डॉक्टर देख एग्जैक्टली। सकते हैं। बट तो यू आर सेइंग कि जरूरी नहीं है, अगर मैं इस चीज को समझाऊं, कि जरूरी नहीं है कि जेनजीज हैं तो आपके पेरेंट्स फुली अपडेटेड हो। They still have that sense of thought के ओके फाइन, डॉक्टर और इंजीनियर इज द बिगर थिंग। बिकॉज हम्म। मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए भी है क्योंकि एक्सपोजर का बहुत मसला है। ऑब्वियसली। मीडिया इस हिसाब से एक्सपोजर शायद पिछले 10 साल में नहीं हुआ जितना अभी 2-3 साल में हुआ है। आने वाले टाइम में शायद आई एम pretty much sure that parents gonna be saying कि okay fine, media studies कर लो, okay fine, मीडिया। your parents wants you to become and you also wanted to become a doctor and a dentist, and then what या happened? तो बेसिकली ये था कि आई ऑल्सो पर्सनली वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, एंड देन मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, ऑब्वियसली हम बायोलॉजी प्री मेडिकल के बच्चे थे, तो वो भी बहुत इंस्पायरिंग होते थे। उनके खानदानों में मतलब लीनियंसी चल रही है डॉक्टर्स की एंड इंजीनियर्स की, एंड आई वाज लाइक हाँ ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई शुड डू, यही राइट डिसीजन है। बिकॉज आई वॉज समवन हु वॉज नॉट गुड एट मैथ्स, मुझे मैथ्स से डर लगता था। आई वॉज नॉट एन आर्टिस्टिक क्रिएटिव पर्सन कि मैं आर्ट साइड पे जाऊँ, कॉमर्स वगैरह पे जाऊँ। तो आई वाज लाइक मेरे लिए तो बस यही ऑप्शन है, मैं तो दिस इज ओनली फॉर मी ना। तो फिर खैर कभी मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि आप बस यही करो, इसके अलावा हम आपको कुछ और करने नहीं देंगे। बट आई Hmm. जस्ट न्यू कि इफ आई वुड हैव डन दैट, दे वुड हैव बीन वेरी वेरी हैप्पी, दे वुड हैव बीन वेरी प्राउड ऑफ मी। तो आई वाज लाइक ये मुझे करना है। देन इंटरमीडिएट हो गया, फर्स्ट ईयर में भी आई गॉट नाइस ग्रेड्स, आई थिंक 80s में ही परसेंटेज आई थी मेरी, एक ग्रेड था। देन सेकेंड ईयर में कोविड केम, राइट। सो व्हेन कोविड केम तो आई वाज पार्ट ऑफ द बैच जिन्होंने एग्जाम्स नहीं दिए थे। तो Hmm. एग्जाम नहीं दिए थे तो हमें बस ग्रेस मार्क्स दे दिए थे, 3% हमारा बढ़ा दिया था, तो मेरे बस 3% बढ़ गए थे। आई कुड नॉट एक्चुअली डू मोर देन दैट, राइट। एंड देन एवरी वन नोज के मेडिकल में इट्स लाइक क्रीम चुनी जाती है, 98-99% वाले बच्चे उनको चाहिए होते हैं फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर। चाहे फिर प्री मेडिकल इंटरमीडिएट कर लिया, ग्रेजुएट हो गई कॉलेज से। I then applied for the MCAT. अब MCAT के लिए है कि you have to take at least a gap year। ये मुझे बताया गया था मेरे दोस्तों से, मैंने कभी किसी और से पूछा नहीं, ठीक है। मुझे प्रॉपर करियर काउंसलिंग नहीं मिली, तो मेरे Hmm. आसपास जो दोस्त थे दे वर लाइक कि यार गैप ईयर तो लेना पड़ेगा आफ्टर कॉलेज, ऐसी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे MCAT के लिए। तो फिर Hmm. कॉलेज के बाद थोड़ा सा मैंने एक गैप ईयर लिया और उसमें मैंने पढ़ा। आई जॉइन द वेरी फेमस अकेडमी अनीस हुसैन, वहाँ अच्छे खासे पैसे लगाए एंड सब कुछ, खुद भी सेल्फ स्टडी की। फिर एमकेट Hmm. देने का जब मेरा वक्त आया तो पता चला एमकेट का पूरा निज़ाम ही बदल गया है। एंड Hmm. एवरीवन जो आई थिंक 2019 या 18 में एमकेट दे रहे हैं, दे कैन नो कि हाउ ट्रोमैटिक एंड हाउ टॉक्सिक दैट टाइम वाज फॉर एवरीवन। कि उन्होंने सारे रूल्स बदल लिए, सारे रेगुलेशंस बदल ली, सिलेबस बदल लिया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हुई हुई थी। खैर आई Hmm. स्टिल अप्लाइड फॉर इट, एंड उन्होंने मार्किंग क्राइटेरिया, पासिंग परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। तो मैंने अप्लाइड फॉर इट, मैंने दे दिया एग्ज़ाम, तो मैं बस 2 मार्क्स से रह गई थी। I failed, and that was like my very first failure कि ज़िंदगी में कभी फेल हुई हूँ। Because a girl who is always scoring high, जिसको academic validation बहुत पसंद है, वो बच्ची है माँ बाप की, कि जिसके माँ Hmm. बाप कहते हैं कि इसकी तरफ से पढ़ाई की टेंशन नहीं है, that girl failed। तो
उस वक़्त मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला फेलियर है। फिर आई डिड नॉट गिव अप उस वक़्त भी। माय पेरेंट्स वर सपोर्टिव, माय फ्रेंड्स वर सपोर्टिव एंड उन्होंने कहा आप फिर से अप्लाई करो। फिर मैंने 1 साल का फिर से गैप ईयर लिया, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैं मानती हूँ। क्योंकि अगेन मुझे किसी ने बताया नहीं कि मुस्कान इट्स ओके इफ यू फेल, देयर इज़ अ लॉट मोर इन दिस ईयर आउट देयर आर अ लॉट मोर करियर ऑप्शंस। नहीं, सबने कहा कि नहीं इसी में आपको जाना है तो आप इसी के लिए रीट्राई करो। आई विश हम्म। कोई उस वक़्त मुझे बताता कि मुस्कान यू कैन गो फॉर मीडिया साइंस, एंड आज अभी तक मैं ग्रेजुएट हो जाती। बट करियर काउंसलिंग हुई नहीं। फैमिली में भी ऐसे मेरे पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो खैर आई टुक अ गैप ईयर अगेन। उस गैप ईयर में फिर मैंने वापस से पढ़ना शुरू किया। उस वक्त मैं इतना बोर हो गई थी कि मैंने एक छोटी सी जॉब भी स्टार्ट कर दी थी। आई वॉज रियली इनटू पेट्स। तो मुझे ना वेट बनने का शौक था, लाइक एनिमल डॉक्टर, राइट। सो उस वक्त हम्म। मैं अपने पेट को एक क्लिनिक लेके जाती थी। तो आई वॉज वेरी पैशनेट। तो उधर ही उन्होंने कहा कि वाई डोंट यू कम फॉर एन इंटर्नशिप, एंड देन दैट टर्न्ड इनटू अ जॉब। बट खैर वो थोड़े टाइम के लिए था बिफोर माय एमकैट। तो खैर आफ्टर दैट मैंने सेकंड टाइम एमकैट दिया अपना, एंड देन उसमें आई डिड पास, आई पास, बट आई डिड नॉट पास इनफ टू गेट अ सीट इन द गवर्नमेंट सेक्टर। तो एमडी कैट में मेडिकल में ये होता है कि इट्स आइदर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। एंड आपकी जो गवर्नमेंट सेक्टर की फीस है इट्स लाइक आई मतलब 1 लाख या 50,000 पर ईयर होगी, राइट। एंड देन जब आप प्राइवेट सेक्टर है तो इट्स लाइक 15 to 20 lakhs पर ईयर। देयर इज लाइक अ हम्म। ह्यूज डिफरेंस, एंड दैट इज समथिंग दैट इवन इफ माई पेरेंट्स वर सेइंग कि हम कर लेंगे अफोर्ड, आई डिड नॉट वांट देम टू अफोर्ड दैट। बिकॉज हम्म। सिर्फ फीस नहीं है वो, 20 लाख से फीस नहीं है, आपकी वैन है, मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस है। मतलब मैं अपने पेरेंट्स को कैसे इतना बड़ा वो बोझ दे दूँ, 20 लाख पर ईयर का, जहाँ बच्चे दो 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 तीन तीन लाख में एक साल में पढ़ रहे हैं, राइट। सो हम्म। फिर मैंने ये किया अगेन, नो करियर काउंसलिंग, नो नथिंग। सो आई वाज लाइक रहना तो मेडिकल में है, किसी और चीज़ के लिए मैंने अपने आप को काबिल ही नहीं समझा कि यार मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। तो आई जॉइंड रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का कोई डिग्री था इन लियाकत नेशनल यूनिवर्सिटी, एंड आई हम्म। वेंट देयर। मैंने वहाँ पे अप्लाई कर लिया बिना सोचे समझे, वहाँ पे हो गया। आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो कुछ हो गया। फिर जैसे ही मैं उस यूनिवर्सिटी में गई, दैट यूनिवर्सिटी वाज समथिंग कि जिसने ना मतलब मेरी लाइट को डिम कर दिया। आई वाज दिस शाइनिंग ब्राइट स्टूडेंट, एंड वहाँ की जो आवाम थी या वहाँ के जो टीचर्स थे या वो जो सोच मेंटालिटी थी, एंड देन द फील्ड इटसेल्फ वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट रिवॉर्डिंग एट ऑल, जिसका कोई करियर या स्कोप था ही नहीं पाकिस्तान में, क्या बाहर भी इतना नहीं था, राइट। तो आई वाज लाइक ओ ये मैंने क्या कर दिया। फिर मैंने एक सेमेस्टर वहाँ पे गुजार लिया, मैंने एग्जाम्स भी दे दिए, बिकॉज आई वाज सो अफ्रेड कि यार अब मैं अम्मी अब्बू के पास किस मुंह से जाऊंगी कि मैंने एडमिशन ले लिया और अब आई हैव टू बैक ऑफ, मतलब अम्मी अब्बू मेरे क्या कहेंगे ना। बट फिर मैंने सेकंड सेमेस्टर में मैं चलेगी, बट आई स्टार्टेड गेटिंग डिप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड, बिकॉज फॉर जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं जिनके माइंडसेट्स आर जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, तो जब उनको एक बॉक्स में डाला जाता है ना वो घुट जाते हैं ऐसे बच्चे। उनको उनको क्रिएटिविटी चाहिए, उनको फ्रीडम चाहिए, उनको एक्सप्रेस करना होता है, एंड आई वाज नॉट गेटिंग दैट। तो मैं ना घुटते जा रही थी एंड आई वाज बिकमिंग डिप्रेस। तो वन डे आई केम होम फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड बस आई वाज वेरी डिप्रेस एंड सैड एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एज वेल। एंड देन माय मॉम सेड कि अगर तुम कल से गए हो यूनिवर्सिटी तो बस मैं तुम्हारी ना खैर नहीं है, मतलब तुम नहीं जाओगी यूनिवर्सिटी अब से, घर में बैठो, कहीं और जाओ, पर तुम इस यूनिवर्सिटी में नहीं जाओगी, ये मैंने कह दिया। एंड बस वो दिन है कि बस मैंने कुछ बताया ही नहीं यूनिवर्सिटी में, कुछ नहीं, आई जस्ट लेफ्ट इट। मैंने बोल दिया कि भाई अब मैं नहीं आ रही, बस खत्म है। एंड वहाँ पे जो भी लोग थे मैंने उनसे भी कट ऑफ कर दिया, मैंने कहा बस अब मैं नहीं जा सकती, इट्स टू टॉक्सिक फॉर मी। फिर खैर मेरी अम्मी ने कहा कि तुम ब्रेक लो, तुम सोचो क्या करना है क्या नहीं करना है, दूसरी चीज़ों में जाओ, और भी चीज़ें हैं देखो, एक्सप्लोर करो। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ऐसे मतलब आई हैड द सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स इन दिस, राइट। तो फिर मैंने कुछ महीने मैं घर पे बैठी, मैंने ब्रेक लिया, मैंने सोचा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अच्छा उस वक्त सिंस कोविड स्टार्ट हो गया था, यूनिवर्सिटी तक तो कोविड बेटर हो गया था। तो उस वक्त ना माई मॉम लव्ड बेकिंग एंड कुकिंग, तो शी वांटेड टू स्टार्ट अ बेकरी एंड आई वाज लाइक अम्मी करते हैं। तो आई स्टार्टेड एंड मेड दिस पेज फॉर हर, एंड उन्होंने अपनी बेकिंग वो करती थी एंड पेज को सोशल मीडिया को मैं संभालती थी, ऑर्डर्स मैं लेती थी। एंड आई एम ऑलवेज समवन जो बहुत एक्सट्रोवर्ट रही है, तो मेरा सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता था, कॉलेज के दोस्त, स्कूल के दोस्त। तो वी स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो पेज चल रहा है। तो लाइक आई स्टार्टेड दैट पेज फ्रॉम स्क्रैच विद नो नॉलेज ऑफ सोशल मीडिया, विद नो नॉलेज ऑफ एड, विद नो नॉलेज ऑफ ग्राफिक्स या पिक्चर्स फोटोग्राफी, कुछ नहीं, ये सब मैंने मतलब खुद ही एक्सप्लोर कर करके, just for the sake of my mom I started it, even though I would never ask her to give me some commission from it, I would do it out of मतलब क्रिएटिविटी की उससे, या मुझे पैशन होता था, मजा आता था मुझे करने में।
अल्हम्दुलिल्लाह दैट बेकरी स्टार्टेड वर्किंग वेल एंड इट्स स्टिल वर्किंग। तो मतलब उसमें मुझे थोड़ा बहुत सोशल मीडिया एंड मीडिया साइड का एक ग्लिम्स मिल गया था। तो खैर उस वक्त मेरे बैक ऑफ द माइंड में भी नहीं था कि यार दिस कुड बी अ करियर ऑप्शन फॉर मी या दिस कुड बी समथिंग आई कुड अर्न फ्रॉम। मुझे दूर दूर तक कभी किसी ने सिखाया नहीं, करियर काउंसलिंग ना कॉलेज में हुई ना स्कूल में हुई, ठीक है। तो फिर वन डे आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम और फेसबुक एंड देन दिस एड कम्स अप के डिजिटल मार्केटिंग, बैचलर्स इन डिजिटल मार्केटिंग या ऐसे कुछ, एंड फिल्म एंड टीवी, मीडिया साइंस एंड जाउद्दीन कॉलेज। एंड आई वाज लाइक बस मैं अप्लाई कर देती हूँ, मुझे ना इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो मैंने अप्लाई किया, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया यूनिवर्सिटी ने एंड इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, एग्जाम भी दिया एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, आई जस्ट गो टू इट। उस वक्त मुझे पता ही नहीं था कि इकरा भी मीडिया साइंस दे रहा है, आईओबीएम का मीडिया साइंस इज वेरी गुड, आईबीएस में है, जाबस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो उस वक्त सिंस काउंसलर नहीं थी तो ऑब्वियसली पता नहीं था, तो आई अप्लाइड। बट खैर देन आई गॉट इनटू मीडिया साइंस एंड देन फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ओके देर आर मोर ऑप्शंस, बट alhamdulillah I still am very happy with my decision of going into Ziauddin, हालांकि it's a small university No, and it's not about the university. So the main idea of discussing this conversation, first of all, especially with your age group, because apparently, if there is a proper career counseling, you might be graduated 2 3 years back. exactly, Um, exactly. but what I personally believe that also wanted to share that ke, life is like that, and it's not always as planned because what I see is कि अगर कोई बंदा मुझसे ये कहता है कि यार अगर मैं 2 साल पहले ये डिसीजन लेता तो मैं 1 साल पहले ग्रेजुएट हो जाता, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि व्हाट इफ कि आप 1 साल पहले ग्रेजुएट हो जाते और उसके बाद 1 साल तक बेरोजगार रहते हैं. तो Exactly, exactly. consider in that way because a lot of time people usually think Gen Zs are very passionate and they know everything. It's not like that. It's not like It's more likely they are still the same kids like we are in the 20s, in the 18s. जब हम अपनी इंटरमीडिएट कर लेते हैं तो क्योंकि हमारे यहाँ मसला है कि हमारे यहाँ एक्सपोजर बहुत कम होता है, और अगर एक्सपोजर होता भी है, अब अपने दोस्तों के एक्सपोजर को एक्सपोजर नहीं कह सकते बिकॉज उनकी नॉलेज भी उतनी होती है जितनी आपकी नॉलेज होती है, और अगर उनकी गलत नॉलेज होगी तो आपकी गलत नॉलेज होगी, ठीक है. सो agree. करियर काउंसलिंग इज बेसिकली वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग्स. मुझे ऐसा लगता है ये स्कूल का हिस्सा होना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं आपके माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अज्यूमिंग कि कल को अगर मेरी या किसी और की औलाद होती है और उनके अम्मा अब्बा फॉर एग्जाम्पल मीडिया स्टडीज हैं और उनके बच्चों को डॉक्टर बनना है, तो एटलीस्ट यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ओके फाइन, ये रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट के लिए ये लोग हैं जो बहुत सही हैं और इनकी गाइडेंस दी जा सकती है, तो एटलीस्ट यू कैन गाइड और यू कैन पाथ वे योर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू दैट. सी है जी, आप आ गए जयाउद्दीन यूनिवर्सिटी में, अब जैसा भी था कैसे भी आना था, यू केम टू I जयाउद्दीन feel it. यूनिवर्सिटी, ठीक है. Yeah. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप इतनी सारी रोलर कोस्टर से आते हैं ना, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कहते हैं फक इट अप एवरीथिंग एंड यू डोंट डू एनीथिंग, Hmm. और यू बिकम वेरी मच मेच्योर कि आप Hmm. कहते हो कि ठीक है, इससे बुरा क्या ही होगा. Yeah, सही है. exactly, एंड exactly. यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग थिंग्स. ओके फाइन, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस, ठीक है. Yeah. अब मुझे ये बताएं कि यू आर इन मीडिया स्टडीज, होपफुली हाफ ऑफ योर मीडिया स्टडीज इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, आधा रह गया Almost, होगा, yeah. ठीक है. व्हाट्स योर अल्टीमेट गोल, ठीक है. मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको मीडिया स्टडीज में आने के बाद आपको ये एहसास हुआ कि यार एक डिग्री आपका ओवरऑल होराइजन चेंज कर सकती है, या डिग्री इज ओनली जस्ट बिकॉज टू गेटिंग अ डिग्री, ठीक है. आपको ऐसा लगता है कि मीडिया स्टडीज ने आपको ये स्कोप दिया कि नहीं यार, आई वांटेड टू डू समथिंग इन मीडिया स्टडीज, या अभी भी आप स्टडीज को सिर्फ ये लेते हो कि ठीक है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ डिग्री. ओके, सो आई बिलीव कि सिर्फ डिग्री इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपके डिग्री से हट के भी यू शुड बी स्ट्राइविंग फॉर अदर स्किल्स, ठीक है। अब जहाँ तक मैं बात करती हूँ तो मीडिया स्टडीज़ में ये था कि मैं सेकंड सेमेस्टर में थी एंड आई हैड दिस कोर्स ऑफ कैमरा लाइटिंग एंड टेक्निक्स, ठीक है। आई हम्म. वाज द पर्सन जिसके घर में कैमरा था एंड मैंने कभी उस कैमरा को पकड़ा भी नहीं था, मतलब मुझे यूज़ ही नहीं करना आता था। एंड देन वो कोर्स हुआ एंड आई गॉट सो इंटरेस्टेड इन द कोर्स, लाइक मुझे अपना एक इंटरेस्ट पता चला जो मुझे पता ही नहीं था कि आई हैड दैट आई ऑफ अ फोटोग्राफर।
And then after that course, I started posting on my public account and I started getting gigs. So second semester was that time कि मुझे अपने पहले paid gigs मिलने लगे. And then आपको एक बार जब हवा लग जाती है कमाने की पैसों की, so you're like you Hmm. have to do more, you have to try more. So that was the time कि I would say कि हाँ media science की वजह से I started earning. But then मैंने फिर photography वाली चीज़ मैंने छोड़ दी. I got into different things. अब वो डिफरेंट थिंग्स में कैसे आई, मैं सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं आई. आई बिलीव कि अगर अभी भी मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी पे ही रिलायंट होती कि मेरी डिग्री ही मुझे इन इन जगहों तक पहुंचाएगी, मुझे एक ऐसा इंसान बनाएगी, तो आई वुड नॉट हैव बीन हियर. जिस तरह से मैं बोल रही हूँ, मैं जिस तरह से बात कर रही हूँ, मैं जिस तरह से इंटरेक्ट करती हूँ, आई थिंक वो उसमें सिर्फ मेरी यूनिवर्सिटी का हाथ नहीं है, उसमें दूसरी चीज़ों का हाथ है कि आई जॉइंड आईसेक. ठीक है. तो फिर व्हेन आई जॉइन आईसेक तब मुझे पता चला कि यार देयर इज अ वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ जस्ट लर्निंग. किताबों से हटकर एक दुनिया है जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए. अगर आप सिर्फ किताब तक ही महदूद रहोगे तो आई Hmm. बिलीव आप आगे नहीं जा रहे हो. एंड इन टूडेज वर्ल्ड आई डेफिनेटली अग्री कि अब जो है ना आपके स्किल्स देखे जाते हैं, आपका Hmm. एक्सपीरियंस देखा जाता है, आप बात करते कैसे हो, किस तरह से करते हो, आपकी नेटवर्किंग, ये सब देखा जाता है. सिर्फ डिग्री पे यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ जॉब, राइट? सो व्हेन आई स्टार्टेड मीडिया साइंस के अराउंड में घूम रही हूँ. मतलब आई वाज दैट पर्सन, बस जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना ग्रैब इट. आती है नहीं आती है, जस्ट ग्रैब इट एंड सी वेयर लाइफ टेक्स यू, बिकॉज लाइफ हैज बीन टेकिंग मी टू सेवरल प्लेसेस. ठीक है. So I was like, just grab it and let's see what Allah has in mind for me. So But खैर that's I also one of the main reason ना कि जो भी मैंने बात की थी, you become very much easygoing when you hmm, see a lot of things in the starting of your educational field. ठीक है. मुझे ऐसा लगता है इसको अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो आपके अंदर एक नई इंस्टेंट आ जाती है कि ठीक है, इससे बुराई क्या होगा, लेट्स ट्राई दिस एज वेल. ठीक है. agree, Also, agree. what I personally believe, do you have any brothers, any sisters, or you are the only one? Yes, yes, I have an elder brother and a younger sister. Okay, so that's that is good thing. जो अगला सवाल है उसमें help out करेगा. That goes to a thing. What I personally believe, Gen Zs are doing things out of the box because they know कि उनके पास एक millennial बहन भाई है जो उनको समझता है. Um, why I'm saying this? Because I can vouch for it. I do have my brothers and sisters. They are Gen Zs, and um, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दे आर ऑलवेज बिलीव दैट कि नहीं यार हमें हर चीज पूछनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम यू अंडरस्टैंड कि ओके फाइन, आई डोंट हैव माय हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर डूइंग दैट. दे गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ कि ओके, वो आपको पहले ही से बता देते हैं कि यार ये चीजें तो चलेंगी नहीं. तो आपके एटलीस्ट वो जो आधे सवाल होते हैं उनके जवाब क्लियर हो चुके होते हैं, एंड यू नो कि यार ये चीज मैं कर सकती हूँ. ठीक है. दूसरी ये चीज होती है कि आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप कहते हो कि यार इससा मतलब ठीक है, नहीं मिली जॉब तो मैं कोई और कर लूंगा, क्योंकि आपको पता होता है ना, आपने वो चीजें उस तरीके से देखी होती. डू यू थिंक दिस इज also one of the reasons that give Gen Z's that potential of growing in any direction? बिकॉज वॉट आई थिंक कि इसमें दो तरीके की चीज है. एक, जहाँ पे लोग कहते हैं कि यार हमने गलतियां करी और हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गलतियों से अगर कुछ नहीं मिलता तो एटलीस्ट तजुर्बा मिलता है. ठीक है. सो आप, यू आर 23, यू आर वेरी यंग. अगर मैं इसमें से वो 3 साल हटा दूं और तो आई बिलीव यू गोना बी ग्रेजुएटिंग इन 21. तो मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ अगले 9 साल आप क्या करती. बट take it as a very good thing. You are still 23, mashallah. You will be inshallah graduating in 25 or so. बट एट द सेम टाइम डू यू बिलीव कि अगर वो बास नेट या वो सेफ्टी नेट आपके पास एज अ मिलीनियल बहन भाई नहीं होता, ठीक है, तो आप शायद थोड़ा सा अ, इतना फ्रीली डिसीजन नहीं ले रहे होते. um, I think I would like to agree to that. अगर तुम मेरे घर से, if I was the elder sibling, ठीक है, खैर अभी तो I have an elder brother. अगर मैं elder sibling होती and I would know कि मेरे माँ बाप when they start getting old वो सबसे ज़्यादा मुझ पे rely करेंगे या घर की जिम्मेदारियाँ मुझ पे आने लगेगी, I think मैं घबराती या मैं कतराती ऐसे डिसीजंस लेने से freely. बट सिंस आई हैड द प्रिविलेज कि ना मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ना एक वो भी चीज़ आ जाती है कि माँ बाप जो है ना लड़कियों से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो जिम्मेदारियाँ उठाएं. राइट ना. तो आई राइट राइट.
टू बी वेरी फ्रैंक राइट नाउ आई एम नॉट डिस्कसिंग द वो वाला पॉइंट, ठीक है। हुँ, यस, देखो वो एक अलग चीज है कि वो हमारे इस्लाम में भी है कि भाई लड़कियों की एक दर्जा अलग है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, आप कितना भी हमारा एडवांस हो जाए माशरा पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो दे कहीं ना कहीं उनको माँ बाप को भी पता होता है कि यार वन वे और अनदर इसने कहीं ना कहीं तो चले जाना है शादी करने के बाद, हुँ, हुँ, ठीक है। दे थॉट ऑफ इट व्हेन यू बॉर्न, ठीक है। तो उनको सबसे पता होता है कि काउंटर क्लॉक चल रही है, अभी कभी ना कभी हो जाएगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आई सी अ लॉट ऑफ जेनजीज, ठीक है, जो ओनली एक चाइल्ड है, उनके पास जिम्मेदारी है एंड दे आर वर्किंग इन अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग, उनको उनके थॉट हुँ, प्रोसेस अलग है, ठीक है। सो हुँ, मुझे ये डिबेट इसलिए कर रहा हूँ या ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो जो लोग कहते हैं ना कि यार जेनजीज अलग है, तो नॉट एवरी जेनजीज इज द सेम। अगर आपके पास वो सेफ्टी नेट ही ना हो, आपको पता ही ना हो क्या मेरे भाई हैं या मेरे, आपके पास आपको पता हो कि आपको 20 साल से वो जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप उस तरीके से एक्सपोजर नहीं हासिल करते और आप एग्री। थोड़ा थोड़ा सा क्लोज अप रहते हो और आप कहते हैं कि ठीक है, हुँ, फोकस ऑन ऑन द मनी पार्ट, बिकॉज दैट्स मेक दिस जनरेशन वेरी outspoken, that हुँ, this make this generation very अग्रेसिव कह लें, या आउटस्पोकन के बाद अगर वो किसी भी चीज में मिल जाते हैं, वो कुछ भी चीज कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है हुँ, इफ दे फक अप उनके पास कुछ है बैकअप के लिए। येस, 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 एग्री। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अब मुझे ये बताओ कि यार यू आर 23, यू ऑलमोस्ट सी ऑल द वर्स्ट थिंग इन योर लाइफ, ठीक है, वट एवर यू वॉन्टेड टू, एंड यू डू एवरीथिंग एट योर बेस्ट बट यू डिडंट गेट इट, ठीक है। अब उसको बैड लक कह लें उसको, अब अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं तो ये गुड लक भी हो सकती है, बैड लक भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए गुड लक थी कि उन्होंने पेपर ही नहीं दिया और वो पास हो गए। देयर आर स्टिल पीपल जिन्होंने उससे पहले पेपर दिए थे और वो पेपर देने के बाद फेल हो जाते थे, तो उनके लिए प्लस पॉइंट था। बट देन इट कम्स टू ब्लेसिंग इन डिसगाइज दोज पीपल, बट वो आपके लिए एक बहुत हॉरिबल ड्रीम थी कि आपको पता था कि अगर आपके शायद पेपर होते तो आप उससे और ज्यादा बेहतर करती। बट व्हाट डू यू थिंक एट दैट टाइम, डू यू थिंक नाउ यू आर एट दैट स्टेज के यू ओनली प्लान थिंग्स जो होती हैं एट द करंट मोमेंट, आप आगे का इतना ज्यादा प्लान नहीं करते जब आप वो सारी चीजें देख लेते हैं ना, क्योंकि वरना लोगों का क्या होता है, लोग कहते हैं आज ये करेंगे, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे। एंड दिस मेंटालिटी अगर आपके पास होती है तो वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको मस्ता देती है ऑन अ लॉन्गर टर्म वे, ठीक है। जॉब में भी यही है कि लॉट ऑफ टाइम पीपल डोंट अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट ऑफ इट, कि मैं तो सोच रहा हूँ कि ये ऐसा होगा, बट व्हाट इफ कि ये ऐसा नहीं होगा, सो व्हाट शुड बी द बैकअप प्लान। अब मुझे ये बताओ, यू आर 23, ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल के अंदर यू विल बी ग्रेजुएटिंग, यू आर अर्निंग गुड, व्हाट्स योर अल्टीमेट गोल, what do you think यार, what you wanted to become, and do you think कि you are on the right path, और you are still exploring the phase कि यार नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ और बनूं, क्योंकि 23 you're getting a lot of updates about the society, आप लोग being as a Gen Z, being as a millennials, उनसे बहुत ज्यादा आगे, you know the new trends, you know the AI, you know everything, ठीक है। but what is your ultimate goal to become when you are 26 or 27? ओके, ठीक है, परफेक्ट। सो करंटली एज़ आई टोल्ड कि आई एम नॉट समवन जो 9 टू 5 करे बिकॉज़ ऑफ माय Mm, यूनिवर्सिटी शेड्यूल, एंड दैट इज़ समथिंग जिस पे मैं अपने आप को लीनियंसी देना चाहती हूँ। बिकॉज़ मैं यूनिवर्सिटी के अलावा काम तो कर रही हूँ फ्रीलांस बेसिस पे, बट मैं दूसरी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा एन हूँ। आई बिलीव कि अगर मैंने अभी 9 टू 5 कर लिया तो आई विल बी मिसिंग आउट ऑन ऑल ऑफ दैट, एंड वो चीज़ें करने का टाइम ना सिर्फ यूनिवर्सिटी लाइफ तक है, एंड यूनिवर्सिटी के बाद लाइफ डज़ गेट क्वाइट टू सीरियस कि मैं अपने दूसरे हॉबीज़ में आई बिलीव कि मैं पार्ट नहीं ले पाऊँगी। सो इफ़ यू आस्क अबाउट द राइट और रॉन्ग पाथ, राइट नाउ आई एम एट अ पाथ जिस पे आई एम कंटेंट विद, ठीक है, आई एम हैप्पी mm, विद। आई डोंट नो कि वो राइट है, वो रॉन्ग है, या क्या पता अभी जो मैं कर रही हूँ आगे जाके उसका स्कोप ना हो, या आगे जाके उसमें सैचुरेशन हो जाए, बट यू नो आई एम टेकिंग इट स्लोली। मैं बहुत लॉन्ग टर्म गोल्स करके नहीं बैठी कि यार 10 साल पे ये करना है, इस पे ये करना है। आई हैव स्मॉल माइलस्टोन्स, ठीक है, कि अच्छा mm, ग्रेजुएट कर लिया, इसके बाद मुझे, अच्छा ग्रेजुएट के बाद आई हैव द प्लान कि आई नीड टू गो टू एन एमएनसी,
आई नीड टू डू अ 9 to 5 टू गेट द 9 to 5 एक्सपोजर, वो कर लिया। आई हैव अ प्लान कि उसके बाद मास्टर्स करना है, उससे आगे मैं नहीं सोच रही, क्योंकि करंट रियलिटी का सिचुएशन को देख के चलना है ना, इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन मैं 10 10 साल के प्लान्स बना लूँ एंड जब वो ना हो तो उसमें मैं अफसोस करके बैठूँ, बिकॉज that is something that has happened to me. My whole life, I dreamt of becoming a doctor, wearing the white coat, and nothing like that happened. So, as a Gen Z, I take things that go with the flow. For a lot of people, that is something कि यार तुम कैसे कर रही हो, कोई तुमने प्लानिंग नहीं की है। मैंने प्लानिंग की हुई है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे चल रही हूँ, मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके नहीं कर रही, ठीक है। सो आई बिलीव दैट इज समथिंग दैट हैज मेड माई लाइफ ईजियर एंड दैट इज समथिंग दैट इज वर्किंग आउट फॉर मी। एंड जहाँ तक जेनजीज की बात है, यू आर कम्प्लीटली राइट। हम ऐसे लोग हैं कि हम ना एक जगह टिकते नहीं है, और हमें डर भी नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें हम ट्राई करें। हमारे पास जो आता है ना, हम उसको ग्रैब करते हैं उस अपॉर्चुनिटी को, और हम उसमें जाते हैं और हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। आई बिलीव कि मिलेनियल्स जो है ना, दे वेरी स्केर्ड ऑफ गेटिंग आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, वेर एज जो जेंजीज है ना, दे गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, उनको वो फेयर नहीं होता, उनको वो रिस्क नहीं होता। सो दैट इज समथिंग which I would That's like a to say debate. about what you. That's a very debatable topic. So Exactly. it's not about being millennials are don't have that confidence to get out their comfort zone. Comfort zone comes up with a very big price tag, to be very honest. क्योंकि what I think your passion, everything goes out from the different door when you know कि 28 you have to pay your bills and 26 you don't have your salary in your account debited. It's a total different thing. This is what my suggestion to everyone is to work for work for someone, work for the 9 to 5 at least a year. And Hmm. why? Because sometime you need to realize to run a company you need to become the part of it. Okay, for Exactly. example, if you think you wanted to start something very big, start from very basic low. Okay, 9 to 5, what 9 to 5 give you, I'm not a big fan of 9 to 5. इसकी एक और But छोटी it सी is चीज मैं important to get that हाँ exposure. बट इसकी एक मैं छोटी सी चीज और ऐड ऑन करूंगा. Mentality changes. You are 23, your mentality is different. You will be 25, you will be thinking differently. You're 30, you will be thinking differently. And the body itself changes. Abhi, you can work 48 hours consecutively. Then you realize that there is no need to work 48 hours. I have to Agree. only work 24 hours. And then you realize, no, I have to sleep 7 hours a day. So yeah, this is what I think. Be versatile enough to explore every little detail because being as a Gen Z, अगर मैं Gen Z होता with this mindset जो मेरे पास है, I will take every experience from everyone because experience come with a lot of different फ्लेवर्स इनटू इट. ठीक है, वो हर बंदे का अलग है. बेशक आप सेम पोजीशन के बंदे से पूछें, इफ यू गो टू अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एवरी कंपनी और यू विल गो टू अ मैनेजर ऑफ एवरी कंपनी, बेशक वो सेम सेम सैलरी पर हो, सेम एज ग्रुप के हों, तब भी उनका एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा. ठीक है, एंड द एक्सपीरियंस इट सेल्फ गिव्स यू अ वेरी गुड सेंस ऑफ रियलाइजेशन. ठीक है, बिकॉज कभी कभार अपने आप को चैलेंज देना चाहिए. मुझे ऐसा Agree. लगता है बीइंग अ मिलेनियल और बीइंग अ जेन जी इज नॉट द डिबेट. इट द डिबेट इज टू अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइम फ्रेम यू आर इन. Hmm. ठीक है, अगर मैं आपको इसी एज ग्रुप में रखूं और आपके भाई वाले पार्ट को हटा दूं और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूं, योर थॉट प्रोसेस विल चेंज. Would be different. या Agree. अगर मैं आपके भाई पे रखूं जो कि एज अ मिलेनियल है और मैं उनमें से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दूं तो उनका थॉट प्रोसेस विल बी चेंज. So that is one of the things. The last thing that I wanted to discuss is okay. We see a lot of people nowadays, people like you, like the new generation. They are more into Snapchat, Instagram, and all these platforms. And I really appreciate क्योंकि they know these platform much way better. क्योंकि अगर आज से 10 साल पहले कोई बंदा मुझे बोलता है कि यार आप एक रील डाल के पैसे कमा सकते हैं तो we can't get that. The medium changes. Our parents are from the medium जब न्यूज़पेपर पढ़ा जाता था, फिर हमारा जनरेशन आई और मीडियम न्यूज़पेपर से क्या कहते हैं टेलीविजन आ गया. यू गाइस केम एंड देन इट ट्रांसफर इनटू सोशल मीडिया. ठीक है, बट what I personally believe, the generation we are at, the millennials, were sitting in the center and they see from before and after.
यू गाइज ओनली सीइंग द प्रेजेंट, ठीक है, और द बिफोर, ठीक है, आफ्टर तो आप लोग ही बना रहे हो अभी बेसिकली। लेकिन हमने ना वो चीज देखी है, पूरे जनरेशन को चेंज होते हुए देखा है। डू यू थिंक कि अपनी पर्सनल ब्रांड पे काम करना ठीक है, क्योंकि मुस्कान नासिर अगर कोई लड़की है, वो किसी भी चीज में स्पेशलिस्ट हो, ठीक है, सर्टेन टाइम के बाद डजन केयर कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, it should be your profile and not being only Muskan. I think being a girl in Pakistan, you should have your own personal branding. You should also understand the power of your own money. ठीक है, you should understand कि okay fine, this is my set of hours that I need to work. This is a set of amount that I need to earn for myself. ठीक है, because nowadays realities are changing, ठीक है। अगर for example there are two type of people, और I think Gen Z उसके अंदर बहुत अलग है। Gen Z has the ability to roam around with a Nokia keypad phone with the attitude of an iPhone 17 Pro Max, because they know no one is gonna judge them, बिकॉज उनको ये बात पता है कि मेरी मेरी जो एजुकेशन है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करता हूँ, सही है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो जेंजी हैं, जो 30, 23, 24, 25 के हैं, और मैंने हर बंदे के अंदर एक अलग आइडिया देखा है। कोई अपने आप को अलग तरीके से मार्केट कर रहा है, कोई अपने आप को अलग तरीके से मार्केट कर रहा है, बट हर बंदा इट्स सेल्फ कोई ना कोई एक छोटी सी एंटिटी होल्ड करता है, जिसकी वजह से उसके ग्रुप में या उसके सर्कल में पता है कि यार ये बंदा इस चीज के लिए फेमस है। मुझे ये बताओ, डू यू थिंक पर्सनल ब्रांडिंग इज समथिंग दैट हेल्प्स over on LinkedIn? I see a lot of Gen Zs are not focusing that much. Yes, trend is changing now. People are coming to LinkedIn, and LinkedIn is also becoming a new LinkedIn or something like that. जहाँ पे Gen Zs LinkedIn को as an Instagram use कर रहे होते हैं. They are more more open towards their thought process and trying to tell that. Do you think that is a good thing? Do you think yes, वो चीजें जो आप खुद करते हो, क्या फायदा हो सकता है इससे? Any tips and advice on that? ओके, यस, पर्सनल ब्रांडिंग इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मुझे ना ब्रांडिंग का तो आइडिया ही नहीं था अनटिल एंड अनलेस आई गॉट इनटू मीडिया साइंस। फिर ना मैंने खुद रियलाइज किया कि द थिंग्स आई डू, द सोसाइटीज आई जॉइन, द वर्क आई डू, दैट इज दोज आर द थिंग्स जो मुझे ना सेट अपार्ट करती है दूसरे लोगों से, मेरे क्लासमेट से। लाइक इफ आई एम इन माई क्लास, आई एम नोन एज दैट आईसेक गर्ली, आईसेक की वाइस प्रेसिडेंट, आईसेक की प्रेसिडेंट। when I am in the field of freelance, I am known as a girl जिसका ना रील्स बहुत अच्छे बनाती है, वो कंटेंट बहुत अच्छा शूट करती है। ठीक है, तो इस तरह से जो ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जिस भी फील्ड में जाओगे, आप जिधर भी जाओगे, देर आर अ लॉट मोर पीपल ऑफ योर एज। ठीक है, so what you do, what is that USP you have that makes you set apart, so you have to market it very right। ठीक है, Hmm. so for me Isaac has been that USP, my work has been that USP, the way I speak or network has been that USP। अगर मैं ये सब चीज़ें ना करती, एंड देन यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना इसको सही तरीके से मार्केट करो। लाइक फॉर माई वर्क, मैं रील्स बनाती हूँ, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सो आई हैव अ पब्लिक अकाउंट। अब उस पब्लिक अकाउंट पे आई डोंट एम फॉर फॉलोअर्स or doing those influencer trends etc, that is like जस्ट माई पोर्टफोलियो फॉर माई वर्क। मैं उधर सिर्फ अपना काम लगाती हूँ, जो मैंने काम खुद किया है, शूट किया है, बनाया है, एंड उसी काम से मेरे पास लोग आते हैं कि ओ देखो इसका पोर्टफोलियो बना हुआ है, ब्रांड्स उससे आते हैं, क्लाइंट्स उससे आते हैं। एंड देन इसी तरह लिंक्डइन पे आई प्रेजेंट माई सेल्फ एज समवन इन आईसेक। ठीक है, Hmm. तो उस तरह से सॉरी माई मॉम की No problem, no problem. should I speak again? Yeah, you can restart. Just give me a second. Yes, you can restart. It's totally ओके, fine. अगर चाहें तो आप उसी पार्ट को कंटिन्यू कर सकती हैं. It's totally fine. Your ओके, background was blurred. ओके, सो उसी तरह से लिंक्डइन पे मैंने अपने आप की प्रेजेंस दिखाई है एज समवन फ्रॉम आईसेक। आईसेक में अभी 700-800 बच्चे होंगे, बट हार्डली उसमें से 200-300 बच्चे हैं जो अपने आप की ब्रांडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इवन इफ आईसेक इन पाकिस्तान की बात करें, आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट एंड देन आई रिसेंटली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इट, राइट। तो दैट इज समथिंग जो बहुत कम बच्चे जाते हैं, लाइक पूरी क्रीम सेलेक्ट होती है, उसमें से बहुत कम बच्चे आगे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि everyone has that same opportunity, लेकिन जिनके पास opportunity होती है, you should ace those opportunities. So I think we have discussed a lot of good pointers, Muskan, and I am really happy that seeing a 23-year-old girl doing a lot of good things, and she understand the overall dynamics of how things work, how everything goes.
But I think we also need to understand it's not about the debate of Gen Zs versus millennials. It's also to understand how you make yourself a better person every day. So I'm pretty much sure a lot of people, a lot of Gen Zs will have an idea. Okay, fine. If Muskan is doing that, they can also work on it. So thank you so much, Muskan. Thank you so much for your time. It's a pleasure to have you on this session. And I'm pretty much sure if anyone have any ideation or any thought process, if they wanted to reach out, they can reach out to you on Instagram or LinkedIn. Just for an idea, write a proper message to Muskan, and I'm pretty much sure she gonna reply because I write a proper message and she replied. So I'm pretty much sure that she gonna reply to you as well. So thank you so much, Muskan. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session.